Good morning, everyone. Like today, I welcome Mr. Viswajit Singh, sir, who is Regional Training Manager from Bajaj Alliance Life Insurance Company. Today, he will be taking us through the session of prospect in insurance industry and impact of COVID-19. So once again, I am welcoming sir and all the participants who are attending this session. Sir, so now we can just start the session. The platform is all yours from now till 12:30, sir. Please, sir. Welcome once again from Amity family. Okay, thank you, Sabyasachi, for this honor and the opportunity which I have got from this esteemed university. And it's my privilege that I'm going to share my some experience with this industry with the people who are associated with this university. So language, I will be going forward. The language will be Hindi, English. I think this language will be comfortable for all of you. Being in Odisha, I am not using Odia. That I'm presuming that some people will also be outside of Odisha also. So Sabyasachi is English and Hindi will be okay for Yes, sir. this Yes, definitely, session. definitely, sir. No problem. No problems. Yeah. Okay, thank you all of you, and I again welcome all of you who have joined so far. And I'm expecting that the people will be joining in the birthday. But before we start, let me introduce myself. Myself, Vishwajit Singh, and I'm working as a regional training manager with Bajaj Life Insurance Company. And I had given almost 18 years of my life in insurance industry, and since 2002 I am working into this industry. And apart from this insurance industry, I do not have any idea about the understanding, to be very honest. And I had started my career as an insurance advisor. आप लोग जो एक मिथ लोगों के बीच में है कि बीमा अभिकर्ता, बीमा का एजेंट. So that time lot of if and buts was there when I was starting my career. But I started my career as an insurance agent, and I worked for a company called Aviva Life Insurance. Then I got an opportunity in direct sales frontline manager as a sales manager with the same company Bajaj Allianz in year 2005. And I continued this profile for 2.5 years, and then I got an opportunity to join the uh, company called Tata AIG. That time it was Tata AIG. Now it has become Tata AIA Insurance Company in the training vertical. So since 2007, I am into training, and prior to Bajaj Allianz, because 2017 again I got an opportunity with this company where I had started my career as a sales manager to join as a training regional training manager in Bhubaneswar. And before to this, I was also have a experience of Banca Assurance Channel, because there was a company. In fact, there is a company called Star Union Daiichi SUD Life. It is a joint venture of Bank of India, Union Bank, and Daiichi Life Japan. So I worked for this company in Lucknow for last assignment as a last assignment. So overall, I have experience of 20 years of experience of insurance selling, and out of that around 12-13 years of training experience. So this is all about me. So going forward, first of all, we will see what is there in this session for you. So by the end of this session, I will be covering in brief, not in detail, because insurance is a vast subject. So what is insurance? Just a basic. Then insurance as a business and its mechanism, how insurance company works, ये थोड़ा सा हम लोग discuss करेंगे. Then life insurance industry and its potential in India, and then life insurance intermediaries. कौन कौन से किस माध्यम से इंश्योरेंस कंपनियां अपने जो उत्पाद हैं उसको प्रमोट करते हैं, वो हम देखेंगे. देन वी विल कवर अबाउट दैट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 के बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ा है. देन वी विल टॉक अबाउट अ ब्रीफ ऑफ particularly how insurance companies structures look like. And there was a last topic which was suggested by Sabyasachi. Then, sir, please explain the training as a career.
So these are the topic which I am going to cover in almost time of 6 minutes. So I will not take more than 50 minutes. Then we will have a question round session for 5-10 minutes. If you people want to ask something, definitely I'd be more than happy to answer your questions. Okay, so first topic and first slide. What is insurance? Actually, insurance आज अगर इंश्योरेंस की बात करें, सो आज तक इंश्योरेंस की जो नॉलेज है, जो अवेयरनेस है, द वे इंश्योरेंस केम टू अस इज टोटली डिफरेंट. सो आई एम नॉट गोइंग हिस्ट्री ऑफ द इंश्योरेंस, बट यस, जस्ट छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि 1956 1 सितंबर 1956 को LIC बना था. एंड उसके पहले भी 256 के आसपास कंपनियां थी जो काम करती थी इंश्योरेंस में, बट बिकॉज ऑफ द नेशनलाइजेशन all companies assets and liabilities were merged and a corporation was being formed called Life Insurance Corporation. और 1956 के बाद अकेला LIC ही लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड में काम करती थी, इसलिए लोगों को अगर बीमा के नाम पे पूछा जाए क्या, तो उनको सिर्फ LIC ही पता था. देन 99 में IRDA का फॉर्मेशन हुआ. IRDA वाज फॉर्म्ड, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. देन IRDA रेगुलेशन केम एंड सिंस 2001 प्राइवेट कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर में आई और बाहर की कंपनियां FDI खुलने के बाद इंडियन मार्केट में आकर काम करना शुरू करी. एंड आफ्टर पीपल स्लोली पीपल came to know about all this insurance and insurance industry. So what is insurance? Insurance is basically a contract between insurer and insured. तो insurer basically insurance company को insurer बोला जाता है, and insured जिसका insurance हुआ है. Now what is this contract? In this contract, one party is the insurer and other party is the insured. So insured promises to pay the premium throughout the policy term, whatever the policy term may be, and insurer, that insurance company, promises to compensate the financial loss occurred due to damage or loss of an asset. And what is an asset? Asset could be anything which is having an economical value. Okay, so diversification, if you see the diversification of the insurance total industry, then insurance is divided into two wings. One is life insurance, where only human beings are being insured, and other is non-life insurance, जिसको हम जनरल इंश्योरेंस भी बोलते हैं. अगेन जनरल इंश्योरेंस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस. तो मरीन इंश्योरेंस में बेसिकली पानी जहाज, शिप्स, उसमें जो एसेट्स होते हैं और उसमें जो लाइफ होती है, ये सारी चीजें इंश्योरेंस होती है. फायर इंश्योरेंस इज बेसिकली एनी लॉस ड्यू टू फायर, सो प्रॉपर्टी हो या एनी thing which is having a financial value, economical value, अगर फायर के कारण लॉस होता है तो इस पॉलिसी में वो कवर होता है. एंड मिसलेनियस इज अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग. सो ब्रॉडली ये 4 तरह के इंश्योरेंस होते थे, बट आज के डेट में मार्केट बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है. इंश्योरेंस मार्केट बहुत ज्यादा स्कैटर हो गया है, डाइवर्सिफाइड हो गया है. अगर आप अभी देखें तो लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, इवन मोबाइल, जो हम मोबाइल खरीदते हैं, स्मार्टफोन, उसको भी हम इंश्योर कर लेते हैं. इवेंट इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच, एक बाराबाटी स्टेडियम कटक में क्रिकेट मैच होना है, तो जो ऑर्गेनाइजर्स होती है लाइक ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन, वो लोग क्या करेंगे, उस इवेंट को ही, उस मैच को इंश्योर कर लेते हैं. बिकॉज अगर किसी कारणवश अगर इंश्योरेंस क्रिकेट मैच नहीं हो पाया या कैंसिल हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे द फाइनेंशियल लॉस ऑकर्ड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर इवेंट. इवन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस होता है जिसमें क्रॉप इंश्योरेंस, और उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं.
देन क्रेडिट इंश्योरेंस मीन्स आप में से बहुत लोग ये भी जानते होंगे कि जो लोग लोन लेते हैं, इन फ्यूचर हो सकता है कि आप लोगों को कभी जरूरत पड़ी, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, तो ये सारे इंश्योरेंस को कवर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट इंश्योरेंस. दैट मीन्स लोन लेने वाले को अगर कुछ हो जाता है तो इन केस, in that situation, insurance company will repay the balance amount, even home insurance. So this is the broad classification of insurance. And in if you talk about in foreign countries, इंश्योरेंस और भी ज्यादा डाइवर्सिफाइड होता है, और वहां पर तो लोग इवन अपने घर का इंश्योरेंस, and in some countries or in like US, UK, वहां पर तो लोग अपने बॉडी पार्ट्स को भी इंश्योर कराते हैं. इवन इंडिया में भी बहुत लोग हैं, जैसे एक्ट्रेसेस हो गई, एक्टर हो गए, ये लोग भी अपने बॉडी पार्ट्स, या प्लेयर्स हो गए, ये लोग अपना बॉडी पार्ट्स को भी इंश्योरेंस करवाते हैं. Now insurance, how the insurance business works. I'm talking about this, giving an example of a life insurance company, but this how the insurance started. If we take example of a village जहाँ पर 400 families रहती है, and we can say that 400 bread earners are there, and it has been observed that every year 4 people die for XYZ reason. Maybe हो सकता है natural death हो, या accidental death हो, या the situation like this corona pandemic or any natural calamities. So out of 400 families, I mean bread earners, it has been observed that every year 4 people die. Now the total village, I mean the total people of that village, they agreed upon, if something goes wrong with a particular family, we will help that family with 1 lakh of rupees. Now 1 lakh into 4 people, that means every year the financial loss for that village due to the 4 death is 4 lakh of rupees. Now what the people of that village decided, that why not we divide this financial loss, and after dividing this, everybody contributes 1,000 of rupees, and they collected a sum of 4 lakhs rupees, because there is a data that which suggests that 4 people may die in the coming year, but who is going to die, nobody knows. Even whoever has born in this world know that the day or some other we have to die, but we don't know the date. So that is the uncertainty which insurance company is covering. तो इसलिए इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें, so इस एग्जाम्पल में 4 लोगों ने what they did, they transfer their risk to 396 people. That means 396 people are sharing the loss of that particular 4 family or 4 people. So that means the transfer of risk is there, sharing of risk is there, pooling of fund, everybody is contributing 1,000 rupees. So that is called pooling of fund or contribution. So insurance company, what basically does is, insurance company collects the money from a group of people who are, they are open to that same type of risk. And after collecting the money, the insurance company acts like a trustee. And when that particular event which the insurance company was expecting, or the people were expecting that it may happen or may not happen, if that incident occurred, then the people who are facing the financial loss are being compensated with the money which were contributed by the group of the people. That means insurance company अपने पॉकेट से कोई भी क्लेम पे नहीं करता. If you talk about the pricing, because every product, suppose any product, let's say we take an example of a let's say mobile.
So mobile अगर हम 20,000 15,000, even there are mobile of more than lakh, more than 50,000. So I'm taking a mobile worth rupees 20,000, let's say. So 20,000 अगर mobile का दाम है, so it is not the manufacturing cost of the mobile. Manufacturing cost may be of around 5,000 6,000. Then why we are paying 15,000 more? So reason being, as you all know, there is lot of cost incurred in getting the product reach from the factory to the end user. So it could be बीच में आपका transportation हो सकता है. There are the different channels, distributor, retailer, इस तरह के channels होते हैं marketing में, जो आप लोग अच्छी तरह आप लोगों के curriculum में भी पढ़े होंगे और आप जानते हैं. So these are the even advertisement advertise जो करते हैं product की, marketing strategy plan करना. There are a lot of even company का अपना profit, कंपनी का एक्सपेंस, सारी चीजें जोड़कर वो जो 5,000 का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, टोटल कॉस्ट नाउ बिकम 20,000. सो द कंज्यूमर इज पेइंग ऑल द expenses. So similarly, if you talk about the insurance premium, the basically insurance premium has a 3 components. So one is the expense. Expense means company's expense, where the company is taking the part for running the company. Even employees जो उन्होंने hire किया है, the salary for the employees, even the competition, brand promotion, advertisement, even the insurance agent को जो हम commission देते हैं, these are the expenses for the company. So that premium is going towards the expense of the company. Second is the mortality charge. Mortality. There is a question from Pawan Pandey. Pawan, there will be a definitely. I will like to answer your question also. Sir, go through presentation. I think most of the question will be cleared. I'm not talking in कि सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, बट एक बेसिक आइडिया आपको आ जाएगा. आपने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूछा था, वी विल टॉक ऑन दैट आल्सो. सो कमिंग बैक टू द प्राइसिंग ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम, तो एक हो गया कंपनी का खर्चा, एक्सपेंस ऑफ द कंपनी. सेकंड इज द मोर्टेलिटी, बिकॉज लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था ये जो 1,000 रुपया, 1,000 रुपीज एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग, इंश्योरेंस कंपनी 1,000 rupees as a mortality charge, or we can say it's a risk premium. So second component is the mortality charge or the risk premium, and third component is the interest earning component, because insurance company is not basically nowadays is to insure the insured, and for not only the risk mechanism, insurance policies are also used for a saving component also. So people are taking this policy to just one sec. Actually, I think because of network error, I have been disconnected from laptop. So please be a I think I am audible, Sabyasachi, right now. Yes, sir. You are audible, sir. Audible. Just one sec. I'm sharing my screen. Sir, now it is visible as well. No problem. Beg a pardon for this technical glitch which we will be facing in this session. No problem, sir. Okay, we are unable to hear anything. Okay, thank you. So third point I was discussing, the third component is the interest earning part. So company, what company does, ये जो interest earning का component है, इसको हम government securities में invest करते हैं, and the return from that investment we were getting from the government, we are sharing all the benefit with the policy holders, particularly in life insurance. I'm not talking about the general insurance company, because general insurance में आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलता, ये केवल लाइफ इंश्योरेंस में बात कर रहा हूं.
Now there are basically two types of need. One is planned need and another is unplanned needs. So planned needs की अगर हम बात करें तो EMRL, these are the four things जहाँ पर why do people actually save. So one is education, child's education, child's marriage, retirement, legacy, and unplanned need is the triple D, death, disease and disability. As we all know, and particularly आप लोग अभी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो, so पढ़ाई खत्म होने के बाद you will start your career, but all of you know that you are being supported by your parents. So whatever the amount the parents has to spend in child's education, they have to plan in past in past they would have already planned for this, because अचानक से अगर कोई चाहेगा कि हमको इस फाइनेंशियल गोल के लिए पैसा चाहिए, so it is very difficult to manage that financial goal. So people are planning for all the financial goals जो कि हमें हर एक लाइफ स्टेज में आता है दी. And there are some unplanned needs जिसके लिए हम प्लान नहीं कर सकते, but yes there are policies. तो death, disease, disability, ये तीन reason है. Particularly in life insurance we treat human being as a income generating asset, and इन तीन कारणों से ये इनकम जनरेट करने का जो पावर होता है ह्यूमन के पास वो बंद हो सकता है या कम हो सकता है. So these 3 Ds are being covered with the insurance policies and with the health policies always. So basically life insurance company दो तरीके के रिस्क को कवर करते हैं, एक dying too early and living too long. So dying too early में क्या होता है कि उनकी फैमिली को सफर करना पड़ता है, द फाइनेंशियल लॉस जो इनकर्ड करते हैं वो उनकी फैमिली करती है. And living too long, while living too long is a risk, because आज के डेट में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 78 एज को पार कर गया है. इन फीमेल इट इज 78 and in male it is around 77-76, and the retirement age in India is 60. तो एक आदमी अगर 60 एज पे रिटायर करता है तो उसको और 15 साल जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए होगा. और आज के डेट में अगर हम बात करें, सो नो कंपनी इज प्रोवाइडिंग पेंशन. इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी पेंशन प्रोविजन आज के डेट में नहीं है. सो पीपल हैज टू प्लान फॉर देयर रिटायरमेंट आल्सो. एंड इन दो तरीके के रिस्क को कैटर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी डिजाइन देयर प्लान्स. सो ब्रॉडली the types of plans are basically pure term assurance plan, जहां पर सिर्फ इंश्योरेंस कवर होता है, वहां पर डेथ की में ही पैसा मिलेगा. अगर पॉलिसी होल्डर जिंदा रहता है, टर्म सरवाइव कर जाता है तो देयर इज नो रिटर्न, एंड प्रीमियम इज वेरी लेस, बहुत कम प्रीमियम होता है, एंड इंश्योरेंस कवरेज इज वेरी हाई. देन अनदर वेरी कॉमन पॉपुलर प्लान इज एंडोमेंट प्लान, जो इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं. चाइल्ड प्लान इज देयर, मनी बैक प्लान इज देयर, होल लाइफ प्लान इज देयर, guaranteed plans is there. There are another platform called ULIP, unit link insurance plans, and again riders are also there. So these plan take care of the dying too early वाला part जो है, जो planned need को हम यहाँ पर cater करते हैं. And second risk जो है living too long, for that we have pension plan and annuity plan. Annuity plans are like a monthly income schemes जो बैंक और पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करती हैं. So उस तरह से हम annuity plan भी प्रोवाइड करते हैं. And there are health insurance plan also. Now I will give you a brief about life insurance industry. So this is for your information, because this data is readily available in the internet. If you want to explore more about the life insurance और इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो आपके पास ये भरा पड़ा डाटा इंटरनेट में मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं. सो फ्यू डेटा जो आपके काम का हो सकता है. आई एम जस्ट शेयरिंग दिस डाटा विद यू. नाउ इंडियन मार्केट में
अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो मोर देन 130 करोड़ पॉपुलेशन में ओनली 25% of the people have taken insurance policy. That means 98 crores जो population है, those are not insured in the Indian market. तो आप सोच सकते हैं कि अभी हमारे पास जो पॉलिसी करने के लिए जो मार्केट है वो कितना ह्यूज मार्केट है. अगेन जो 25% लोग इंश्योरेंस लिए हैं, उनमें से अगर जो डेटा बताता है कि सारे लोग जो इंश्योरेंस लिए हैं एज पर एक्चुअल HLV, उन्होंने सिर्फ 8% लिया है. दैट मीन्स अगर मेरा HLV, नाउ व्हाट इज HLV? HLV इज ह्यूमन लाइफ वैल्यू. एक आदमी की अर्निंग के हिसाब से मैक्सिमम वो कितना इंश्योरेंस उसको मिल सकता है, दैट इज बेसिकली इट्स HLV. तो अगर मान लीजिए मेरा HLV है 100 रुपीज, तो मेरे पास सिर्फ 8 रुपए का इंश्योरेंस है. सो अगेन देयर इज अ ह्यूज गैप, राइट? आप अभी तो वो इंश्योरेंस का देखा होगा, स्वर्गीय इमरान खान उसमें इरफान खान उसमें एड में थे, और उन्होंने बड़ा अच्छा, ये शायद एगन रेलिगेयर का एड था, उसमें वो बोलते थे कि कम इंश्योरेंस लेने की बीमारी. सो हमें लेना था 100 रुपए, लेकिन हम 8 रुपए का इंश्योरेंस लेके हम सोच रहे हैं कि वी आर फुली कवर्ड. नाउ एक और डाटा देखिए, इफ वी टॉक अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस, ओनली 44% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज द हेल्थ इंश्योरेंस. दैट मीन्स आप सोच लीजिए कि बाकी लोग कहाँ से मैनेज करते हैं. बहुत लोगों को तो घर जमीन सब बेचना पड़ता है इन केस अगर उनके पास उनके घर में या उनको खुद कुछ क्रिटिकल इलनेस डिजीज हो जाती है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन या इंश्योरेंस प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन इन टोटल GDP, इट इज ओनली 3.69%. अब अगर हम इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें, तो इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो by 2020, मैंने नेक्स्ट 2021, तो नो डाउट कोविड का थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है, बट एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 19 लाख करोड़, अराउंड 19 लाख करोड़ का ये इंडस्ट्री पूरा बनने वाला है. एंड देयर आर at present 24 life insurance company and 33 non-life insurance company and 5-6 purely dedicated health insurance company. Now if I talk about the 24 life insurance company, आपको मैं एक छोटा सा डेटा शेयर करता हूं. ऑस्ट्रेलिया is having a population of 25 crores, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के जनसंख्या के आसपास होगा. एंड ऑस्ट्रेलिया में there are 29 insurance companies. And if you talk about the vis-a-vis कि इंडिया में 130 crores का पॉपुलेशन है, तो उसके लिए कितना इंश्योरेंस कंपनी चाहिए होगा. So this is the just rough market. And every day the Indian population, not every day, every year the Indian population is growing with a rate of around 4 to 5 crores every year. population add हो जाता है. So इंश्योरेंस मार्केट कभी पेनिट्रेट नहीं हो सकता है. आप लोग अपने स्टडीज में भी बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते होंगे कि कैसे इंडस्ट्री चेंज हो गई. आज के डेट में अगर हम बात करें, 2-3 एग्जांपल छोटा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. सबसे बड़ा जो मार्केट में चेंजेस आया, अगर आप याद होगा, फोटोग्राफी. एक टाइम पे एक कंपनी था कोडक. ना कोडक फिल्म रोल्स बनाता था कैमरा के लिए, वो कंपनी बंद हो गया. बिकॉज आज के डेट में लोग कैमरा, जब अगर फोटो कैप्चर करना होता तो मोबाइल फोन ही काफी है. देयर आर लॉट ऑफ रेडियो कंपनी किंबा म्यूजिक सिस्टम कंपनी धीरे धीरे बंद हो गई है. लोग नाम सुनना बंद हो गए हैं. बिकॉज आज के डेट में अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो आपके मोबाइल काफी है उस चीज को पूरा करने के लिए. बहुत सारे घड़ी कंपनियां, उनका प्रोडक्शन कम हो गया. घड़ी, इवन यू टॉक अबाउट द मोबाइल, आज के डेट में हम उसको एक वॉच के हिसाब से भी यूज करते हैं. सो वी कैन नॉट नो कि किस इंडस्ट्री का हमने कभी सोचा नहीं था कि मोबाइल का कंपटीशन
घड़ी वॉच कंपनियों के साथ होगा, या फिल्म मेकर कंपनियों के साथ होगा जो फोटो फिल्म बनाती है, या फिर कैमरा बनाने वाली कंपनी के साथ होगा. सो वी कैन नॉट, इवन आज के डेट में ड्यू टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आज के डेट में ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के साथ भी, इवन एयरलाइन इंडस्ट्री के साथ भी इसका कंपटीशन आ गया है. सो वी कैन नॉट थिंक कि किस इंडस्ट्री का कंपटीशन किस इंडस्ट्री के साथ होगा. बट इफ आई टॉक अबाउट इंश्योरेंस इंडस्ट्री, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर इंश्योरेंस. सो आज के डेट में इंश्योरेंस कंपनी का या इंश्योरेंस इंडस्ट्री का किसी दूसरी इंडस्ट्री के साथ कभी भी कंपटीशन हुआ है, ना कभी होगा. नाउ गोइंग फर्दर, 76% of the people in India, they expect comfortable retirement life. However, only 33% of Indian population, they have planned for their retirement life. And very surprisingly, out of 10, 7 Indians expect कि उनके बच्चे उनको सपोर्ट करेंगे. बुढ़ापे की लाठी हमारे बच्चे होंगे. So ये कंसेप्ट जो आदि काल से चला आ रहा है वही चला जा रहा है. Now there is a very important survey or a report by ASCOM that by 2030, 30 lakhs new jobs are going to be created by this industry. Total. And insurance sector में 50% employment जो होगा that will be in the insurance sector. Even कल मैं इस प्रेजेंटेशन को जब बना रहा था और एक मैं डेटा भी थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा था एनालाइज करने का, तो what I found 10-20%, I may be wrong also, but I saw that जब इंश्योरेंस MBA करने के बाद लोग प्लेसमेंट में जाते हैं, so I saw overall data except that top 10 B schools कि मैक्सिमम जो रिक्रूटमेंट आज के डेट में हो रही है वो अराउंड 40 to 45% ओनली फाइनेंशियल सेक्टर में हो रहा है, दैट टू इंश्योरेंस एंड बैंकिंग. एंड इफ यू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर, तो 33% जितने भी रिक्रूटमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में हो रही है उसमें 33% स्पेशली इंश्योरेंस कंपनीज में ही हो रही है. एंड इवन जो रेस्ट रिक्रूटमेंट हो रही है, अगर बैंक में सपोज रिक्रूटमेंट हो रही है, तो मैं ये भी देख रहा था कि जितने भी लोग बैंकिंग या अदर फाइनेंशियल कंपनीज में जा रहे हैं, अल्टीमेटली अगर आप देखें तो आज के डेट में सारे बैंक्स इंश्योरेंस बेच रही हैं. उसका रीजन आपको समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा कर रही है. बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो, बैंकिंग सेक्टर में चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, आप अगर देखें राइट फ्रॉम SBI लाइफ SBI बैंक की कंपनी है, आईप्रू की ICICI बैंक की आईप्रू इंश्योरेंस ICICI प्रूडेंशियल है, इवन बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक की स्टार यूनियन दाइची है. सो नेम द बैंक, सारे बैंक अगर उनकी अपनी इंश्योरेंस कंपनी नहीं है तो वो किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप कर रखी है. बिकॉज इस इंश्योरेंस सेलिंग से जो उनको इनकम होता है, that is the net profit for the bank, and they are also insuring their customer as well. So that is the potential of the insurance market. Because actually insurance में काम करना एक जो mindset हमारा था, और अभी भी धीरे धीरे चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, कि इंश्योरेंस बेचने का मतलब एजेंट बनना, घर घर जाना और लोगों से ठोकर खाना. नो, दिस इज नॉट लाइक दैट कि इंश्योरेंस कंपनी में काम करना मतलब सिर्फ आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं. और इवन हमारे सेक्टर में जो लोग इंश्योरेंस बेच भी रहे हैं, आज बेचने का जो पूरा प्रक्रिया है ये टोटल चेंज हो गया. देयर इज अ हेल एंड हेवन डिफरेंस बिटवीन द 30 days बैक द इंश्योरेंस वाज बीइंग सोल्ड एंड नाउ वी आर सेलिंग द इंश्योरेंस. एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं. हमारे दिमाग में हिंदी मूवी को देख कर यह आ गया था कि अगर हम राइटर की बात करें तो राइटर का एक इमेज होता है कि कुर्ता पहना हुआ है, कुर्ता पजामा पहना हुआ एक आदमी है, दाढ़ी बढ़ी हुई है और बैग एक लटकाए हुए. सो उसको हम राइटर बोलते हैं. बट डू यू थिंक आज के डेट में राइटर का डेफिनेशन या जो राइटर को पोर्ट्रे किया गया था, क्या राइटर वैसे दिखते हैं? इफ यू टॉक अबाउट चेतन भगत,
चेतन भगत को तो मैंने कभी उस अवतार में नहीं देखा था, या यंग जनरेशन का एक राइटर दुर्जय दत्ता, उसने 21 साल की उम्र से नोवेल और कहानियां लिखनी शुरू किया, वो तो खड़ा होगा तो सामने उसको लगेगा कि वो तो 12th का स्टूडेंट है। सो इंश्योरेंस एजेंट का मतलब ये नहीं है कि वो झोला लेके कागज लेके किसी के घर में गया है, बेचना है और दरवाजा देकर बंद करके उसको बोला जा रहा है नहीं घर में कोई नहीं है। सो दिस ऑल आर द मिथ्स जो कि हमारे दिमाग में है। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज आज के डेट में बहुत से यंग जनरेशन, आप जैसे लोग भी जब प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लोग एज ए करियर प्रोस्पेक्ट नहीं देखते हैं, बिकॉज इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लास्ट ऑप्शन के लिए रखा जाता है कि अगर कहीं कुछ नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कर लिया जाएगा। नो, दिस इज वेरी रॉन्ग आई मीन आइडियोलॉजी। मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, अगर आप पहले से अगर प्लान करते हैं तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो पोटेंशियल है वो शायद ही किसी इंडस्ट्री में है। नाउ दिस इज द वे इंश्योरेंस कंपनी आज के डेट में अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। एक देयर आर डिफरेंट चैनल्स यू कैन टॉक अबाउट, और ब्रोकर चैनल है, इंडिविजुअल एजेंट चैनल है, कॉर्पोरेट चैनल्स होता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, माइक्रो इंश्योरेंस चैनल होता है, बैंक का इंश्योरेंस चैनल। बैंक का इंश्योरेंस चैनल जो मैंने अभी आपसे बोला कि बैंक का इंश्योरेंस इज अ टाई विद बैंक्स, बैंक के थ्रू से हम बैंक के कस्टमर को पॉलिसी प्रमोट करते हैं। इवन सुपरमार्केट एंड अदर रिटेल स्टोर्स में भी लीड जनरेट करके वहां पर भी इंश्योरेंस पिचिंग होती है। इंटरनेट के थ्रू होता है, ई कॉमर्स, आपने policybazaar.com का ऐड आप आए दिन देखते होंगे, तो देयर आर 2-3 साइट्स, bimaonline.com, इस तरह से 2-3 साइट्स भी हैं जहां पर डायरेक्ट इंश्योरेंस की प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल में एक तो इंटरनेट होता है और दूसरा टेलीकॉलिंग चैनल भी हमारा होता है। डिजिटल टीवी में हम एड और सैटेलाइट जो सेलिंग बोलते हैं आज के डेट में नया कंसेप्ट, उसमें भी इसको बेचा जाता है। सेल्फ फोन या फिर पीडीए जो अपना पर्सनल डिवाइस असिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, तो उसके थ्रू से भी एसएमएस देकर जो एडवर्टीजमेंट होती है वहां से भी लोग डायरेक्ट लिंक भेजा जाता है उनको, अगर चाहते हैं पॉलिसी लेने के लिए तो डायरेक्ट लिंक को भी वो प्रेस करके पॉलिसी खरीद सकते हैं। एंड फाइनली द कियोस्क, तो मॉल्स में या फिर कोई ऐसा प्लेस जहां पर फुटफॉल ज्यादा है, पब्लिक प्लेस, तो वहां पर भी कियोस्क के थ्रू से। तो ये जो सारी आप जो पॉइंट्स देख रहे हैं, ये इतने तरह के चैनल्स एक इंश्योरेंस कंपनी में होती है। इफ यू टॉक अबाउट कि सर आप किस चैनल में काम करते हो, तो मैं जो चैनल है, मेरा चैनल है वो इंडिविजुअल एजेंट्स, एजेंसी चैनल हम इसको बोलते हैं। तो केवल एक चैनल हम नहीं बोल सकते, हमारा यहाँ पर ये इंडिविजुअल एजेंट चैनल, उसमें मैं एसोसिएट हूँ, और डिफरेंट चैनल्स में डिफरेंट हायरार्की होती है और वहां पर सारे लोग डिफरेंट वे से काम करते हैं। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कोविड-19 ये जो मार्च के बाद से ये शुरू हुआ, हमारा पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया। आज के डेट में चाहे वो आपके स्कूल कॉलेज की पढ़ाई का तरीका हो, हमारे ट्रेनिंग का तरीका हो, इंश्योरेंस सेल का तरीका हो, कॉन्फ्रेंस कॉल का तरीका हो, सारा कुछ बदल गया है। बिकॉज मार्च से पहले जूम कॉल क्या होता है ये हमने सुना नहीं था। मैंने जूम कार सुना था, बट जूम कॉल के बारे में नहीं जानता था। बट जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ तो धीरे धीरे लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी थी, हमें पता नहीं था। वेबिनार मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले से लोग करते थे, मैंने पहली बार इसको 3 साल पहले सुना था। बट क्या होता है, कैसे होता है, कभी ना मैंने इंटरेस्ट ली और ना मैंने किया था। बट आज के डेट में वही चीज करना पड़ रहा है। तो अगर आप ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें, यस, मार्च 2020 में ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो नेगेटिव ग्रोथ देखी 19% एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, अराउंड 19% का डिग्रोथ रहा बिजनेस कलेक्शन में। बट सरप्राइजिंगली Q1 अप्रैल में जून जो इस फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर बंद हुआ, तो उसमें ओवरऑल इंडस्ट्री ने 12% का जंप दिखाया। बिकॉज YOY ग्रोथ मीन्स ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर अप्रैल मई जून में जो हमने बिजनेस किया था उसके कंपैरेटिवली इस साल हमने 12% ज्यादा बिजनेस किया है। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? मेन रीजन ये 3.5-4 महीनों में लोगों ने इंश्योरेंस के प्रति जो आग्रह दिखाया है वो पहले कभी नहीं देखा गया था, नंबर 1। एंड नंबर 2,
टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लोगों ने बहुत ज्यादा क्वेरी, इवन गूगल में जो सर्च मारा है कि कोविड कवर्ड है या नहीं, कोविड के लिए क्या इंश्योरेंस है, इस तरह के सर्चेज, इवन policybazaar.com उन्होंने भी एक सर्वे निकाल कर देखा कि लोग टर्म प्लान एंड हेल्थ प्लान ज्यादा खोज रहे हैं. इवन बिकॉज ऑफ दिस आवर कंपनी हैज आल्सो लॉन्च्ड अ टर्म प्लान. पहले भी हमारे पास था, लेकिन अभी डिमांड के हिसाब से टर्म प्लान उन्होंने रिवाइज करके डाला. तो ये एक चेंजेस कोविड के बाद हुआ, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. एंड जो सबसे बड़ी चीज डिजिटलाइजेशन, आज के डेट में हमारा फिजिकल इंटरेक्शन लोगों के साथ कम हो गया है. तो ये मैं प्लस पॉइंट बात कर रहा हूँ कि कोविड-19 आने के बाद इंश्योरेंस कंपनी में क्या क्या हुआ. तो अब हम घर बैठे बैठे ही लोगों के से कनेक्ट कर रहे हैं. जैसे अभी मैं अपने बेडरूम में एक टेबल के सामने लैपटॉप खोल के बैठा हूं और आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं. और ये पिछले 3.5 महीने से ये मेरा दिनचर्या हो गया है कि एवरी डे आई हैव डूइंग माय डेली वर्क्स फ्रॉम माय होम ओनली. एंड द मेन पार्ट, ये कोविड आने के बाद सबसे बड़ी चीज जो है इवेंजलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. लोगों के प्रति, लोगों को लाइफ इंश्योरेंस के प्रति जो अवेयरनेस था वो बढ़ गया है. लाइफ इंश्योरेंस जो लोग पहले सोचते कि यार ये एजेंट मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इनको मना करो, ऐसा नहीं है. अब लोग खुद आने लगे, इंश्योरेंस के बारे में पता करने लगे. दिस इज द मेन थिंग हैपेंड आफ्टर द पैंडेमिक हैज ऑकर्ड. नाउ इंश्योरेंस कंपनी के एक चीज और सीखने को मिली है कि अगर वर्क फ्रॉम होम कल्चर, बिकॉज हम लोगों ने सुना था सिर्फ आईटी इंडस्ट्री वर्क फ्रॉम होम से काम करती है, बट इंश्योरेंस कंपनी आज के डेट में ये एनालाइज कर रही है कि वर्क फ्रॉम होम करने से हमारे कितने तरह के खर्चे कम किए जा सकते हैं. और चूंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो बहुत सारा डिपार्टमेंट, खासकर जैसे मेरा डिपार्टमेंट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, वी आर वर्किंग फॉर 14 आवर्स 12 आवर्स, बिकॉज सुबह 8 से काम शुरू होता है, रात के 10 तक होता है. और चूंकि हम घर पे ही है इसलिए कोई टेंशन नहीं है. सो कंपनी इज थिंकिंग ऑन दैट लाइन ऑल्सो. ऑनलाइन कंसल्टेशन बढ़ गया है, ऑनलाइन कंसल्टेशन और ये वीडियो कॉलिंग के कारण क्या हुआ कि आज के डेट में पैसा और टाइम दोनों बचने लगा है. एंड वन मोर थिंग हैज हैपेंड, बिकॉज आप लोग अगर न्यूज से अपडेटेड तो रहते ही होंगे, इवन अगर आपने सुना होगा लास्ट 3 महीने में बैंक एफडीज रेट कम हो रही है, बिकॉज बैंक जो आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया है. तो बिकॉज एफडी रेट कम हो गई है तो इंश्योरेंस में गारंटीड प्लान का डिमांड बढ़ गया है. सो ये देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूं, आप लोगों में से भी कोई अगर ये चाहता है कि आप इंश्योरेंस में करियर बनाना चाहते हैं या इंश्योरेंस कंपनी को एज ए करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, तो केवल इंश्योरेंस बेचना ही करियर नहीं है. यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. जैसे मैं आपको विथ पर्टेनिंग टू माय कंपनी ये आपको एक ओवरऑल एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ. डायरेक्ट सेल्स है, डायरेक्ट सेल्स में भी अलग अलग प्रोफाइल्स होते हैं. एजेंसी सेल्स है जिसमें मैं बिलोंग करता हूँ. इंस्टीट्यूशनल सेल्स है, इंस्टीट्यूशनल सेल्स बिजनेस में तो हाईली कॉम्पिटेंट इवन एमबीए ग्रेजुएट्स को ही ली जाती है. इवन आपके कॉलेज से भी इंश्योरेंस एमबीए ग्रेजुएट्स को कंपनी हायर करती है. इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में वो डायरेक्ट जाते हैं, बड़ी पॉलिसी की बात होती है. माइक्रो इंश्योरेंस जनरली एनजीओ के साथ मिलकर किया जाता है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी कैसे लॉन्च करना, क्या करना, ये आप लोगों को पता है. नाउ देयर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट. ये जो पॉलिसी अंडरराइट होती है, अगर मैं पॉलिसी प्रपोज करता हूं तो वो डायरेक्ट इशू नहीं होगा, उसमें रिस्क असेसमेंट होती है. वो डिपार्टमेंट है अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट. तो उसके लिए अलग कोर्स है. अगर आप चाहते हैं कि बैकएंड में आप अंडरराइटर बनना चाहते हैं तो आपको उस कोर्स में रिलेटेड कोर्स को करना पड़ेगा. नाउ एक्चुअली सबसे क्या बोल सकते हैं आप इसको, टेक्निकल पर्सन इन द इंश्योरेंस कंपनी. इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और इंश्योरेंस में अभी एक्चुअली बहुत कम है. और इनकी पैकेज की अगर बात करें तो सीटीसी इनका क्रोर्स में रहता है. तो एक्चुअली सारा जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कंपनी ग्रो करेगा नहीं, कहां पर ब्रांचेस खोलने, ऑल द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ऑल द प्रॉफिट एस्पेक्ट, ये सारा एक्चुअली देखता है. देन देयर इज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम जो खाली प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करती है. हमारे पास फाइनेंस टीम भी है जिसमें फाइनेंस, आप लोग जो लोग फाइनेंस में एमबीए करते हैं, मास्टर जो स्पेशलाइजेशन, वो इसमें ट्राई कर सकते हैं. लीगल डिपार्टमेंट इज देयर जो कि सारा लीगल एस्पेक्ट को डील करती है. एंड एफपीयू फ्रॉड कंट्रोल यूनिट जो कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर होती है फ्रॉड, उसको वो देखती है.
उनका इंश्योरेंस सेल से कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली। डेटा साइंस इज देयर, आज के डेट में डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट ये एक पोस्ट बहुत ज्यादा निकल रहा है, और इसमें भी केवल एक पोस्ट नहीं है, मैनेजर, उसके ऊपर वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह की हायरार्की भी है, हर लेवल पे ये सारी हायरार्की है। Then statistical and MIS. MIS is very, very important for insurance company. Then there is a department called persistency department, जहां पर हम renewal premiums collect करने के लिए टोटल डिपार्टमेंट है, कस्टमर केयर का अलग डिपार्टमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैटबॉट एंड जो अपना टेक्नोलॉजी से इनबिल्ट रहता है, सो फॉर दैट दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। इवन IT डिपार्टमेंट हमारा अलग है, HR ह्यूमन रिसोर्स जो लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं HR में, उनके लिए ये डिपार्टमेंट। देन ऑपरेशन डिपार्टमेंट और एंड कंटेंट डेवलपमेंट, जो कि ये ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपके लिए ये छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया, दिस इज अ कंटेंट। तो आज के डेट में कंटेंट का भी डेफिनेशन चेंज हो गया, ओनली नॉट पावर पॉइंट। आज के डेट में एनिमेटेड वीडियो, साउंड, ऑडियो, वीडियो सारा कुछ उसमें दिया हुआ है, बिकॉज एडल्ट लर्निंग इज not only visual learning or audio learning, that should be a kinesthetic learning also. So content development में भी instructional designers, उनके लिए यहाँ पर vacancies होती है, और पूरा टीम ही है उसके लिए। एंड फाइनली जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हो सकता है मैंने कुछ डिपार्टमेंट्स इसमें छोड़ भी दिया है। सो एक जो मिथ था कि इंश्योरेंस कंपनी माने खाली पॉलिसी बेचना है, नॉट्स लाइक दैट, इट्स अपार्ट फ्रॉम दिस। एंड इफ यू टॉक अबाउट, सब्यसाची ने कल एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया था कि सर अगर आप एज ए ट्रेनिंग करियर की बात थोड़ा सा कर ले, तो डेफिनेटली आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि अगर आप में से कोई इस डिपार्टमेंट ट्रेनिंग को अगर अपना प्रोफेशन बनाना चाहे तो। बट एक चीज मैं इसमें बोल दूं, जैसे ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो मैंने आपको दिखाया, हर डिपार्टमेंट हर किसी के लिए नहीं होता है। बिकॉज एक छोटा सा एग्जाम्पल, जंगल में ये तय कर दिया जाए कि जो पेड़ में सबसे पहले चढ़ेगा वो जंगल का सर्वश्रेष्ठ जानवर होगा, तो शायद बंदर और गिलहरी बंदर का सबसे ज्यादा ताकतवर या सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ जानवर में आ जाएगा, राइट? सो इट्स नॉट लाइक दैट। सभी जानवरों की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। मगरमच्छ पानी के में सबसे पावरफुल है, हाथी जमीन में पावरफुल है। उस तरह अगर ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, तो आप चाहे एक ही डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन कर रहे हो, BBA हो, MBA हो, या जिस सब्जेक्ट में आप कर रहे होंगे, बट हर किसी की स्किल अलग है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी पोटेंशियल, आपका स्ट्रेंथ क्या है। बिकॉज एक चीज और मैं आपको शेयर करना चाहूंगा बिफोर आई गो टू द ट्रेनिंग वर्टिकल, और ट्रेनिंग में आप क्या क्या कर सकते हो। आज के डेट में मेरा ये मानना है कि नौकरी और मैरिज ये दोनों एक जैसा ही है। अगर हम मैरिज की बात करें तो इसमें दो तरह के मैरिज होते हैं, एक अरेंज मैरिज और एक होता है लव मैरिज। तो अरेंज मैरिज में जिससे आपका विवाह होता है उससे आप प्यार कर बैठते हैं, और लव मैरिज में इसका उल्टा, जिससे आप प्यार करते हैं उनसे आपकी शादी होती है। अगर बीच में जो एक वर्ड होता है ना प्यार, लव, अगर लव नहीं है तो चाहे वो अरेंज मैरिज या लव मैरिज, ये दोनों का टूटना तय है। तो उसी तरह आप नौकरी की अगर बात करें, सर्विस के जॉब की अगर बात करें, तो आइदर आप ऐसा जॉब कीजिए जिसका आप सपना देखे थे, या जिससे आप प्यार करते हो कि नहीं मुझे तो ऐसा ही काम करना है, या फिर जो भी काम आप करने शुरू करते हैं उससे प्यार कर बैठिए। तो क्या होगा कि आपका डेवलपमेंट होगा, आप उस फील्ड में ज्यादा दिन तक टिके रहेंगे और आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। अगर दोनों ही चीज नहीं है, या तो आप जिस जॉब को कर रहे हैं उससे आपको प्यार नहीं है, या जिस जॉब को आप प्यार करते थे एक्सपेक्टेशन थी और आपको मिला नहीं, तो वो जॉब ज्यादा चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं सजेस्ट ये करूंगा मेरे एक्सपीरियंस से कि आप पहले अपनी पोटेंशियल, आपको किस चीज का पैशन, बिकॉज अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं, मैं इंश्योरेंस बेचता था और उसमें बड़ा कंफर्टेबल भी था। बिकॉज अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स में अगर मैं बिजनेस कर देता हूं तो उसमें कोई पूछता नहीं है क्या हुआ, क्या किए, क्या नहीं किए, कोई नहीं पूछता है। बट मेरा जो एक धीरे धीरे पैशन बन गया लोगों से इंटरेक्ट करने का, जब मैं सेल्स मैनेजर था तो एडवाइजर से बात करता था, उनको छोटा मोटा ट्रेनिंग दिया करता था, तो धीरे धीरे ये पैशन मुझे लगा यार मुझे तो अच्छा लगता है लोगों से बात करना, तो व्हाई डोंट वी एक्सप्लोर द ट्रेनिंग वर्टिकल। तो उसके बाद मैं ट्रेनिंग में जाने की कोशिश की।
तो आज के डेट में अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग वर्टिकल में जाना चाहते हैं, तो जैसे मेरी कंपनी में ट्रेनिंग में भी 3 वर्टिकल है। एक एजेंसी चैनल ट्रेनिंग टीम है जिसमें मैं हूँ, अल्टरनेट वर्टिकल का ट्रेनिंग टीम होता है, और एक बैंक का चैनल का होता है। बैंक का चैनल मैंने जो बैंक्स में जो हमारी टीम काम करती है उनको सपोर्ट करने के लिए, बैंकर्स को इंश्योरेंस की अवेयरनेस, उनको इंश्योरेंस की ट्रेनिंग देने के लिए ये चैनल पूरा काम करता है। अल्टरनेट चैनल ब्रोकर चैनल को हेल्प करने के लिए और दूसरे हमारे इंटरमीडियरीज हैं उनको हेल्प करने के लिए काम करती है। तो नो डाउट, अब इसमें भी देयर आर हायरार्की, ऐसा नहीं कि खाली ट्रेनिंग, जैसे ब्रांच ट्रेनिंग मैनेजर, रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर, स्टेट ट्रेनिंग मैनेजर, उसके ऊपर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल ट्रेनिंग हेड, तो इस तरह से डिफरेंट चैनल्स होते हैं और इसमें प्रोस्पेक्टिव भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि खाली एक ही लेवल पे काम करना है। यस, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग इंश्योरेंस फील्ड को या इंश्योरेंस ट्रेनिंग को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और मैं सजेस्ट करूंगा कि देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेस, लॉट ऑफ डिप्लोमा जो कि इंश्योरेंस कंपनी में जिसकी आदर होती है। एक तो रिस्क मैनेजमेंट आप लोग जानते होंगे, बिकॉज एमबीए में रिस्क मैनेजमेंट का अलग सिलेबस होता है, स्पेशलाइजेशन होता है आजकल। हेल्थ इंश्योरेंस डिप्लोमा होती है, सर्वेयर का डिप्लोमा होता है। जनरल इंश्योरेंस में सर्वेयर का जो डिग्री है बहुत वैल्यूबल है, बहुत डिमांड भी है और बहुत पैसा भी है। एक्चुरियल साइंस ये थोड़ा टफ है, जिन्होंने जैसे आर्ट्स में स्टैटिस्टिकल साइंस ले रखा था होगा, या उनको मैथ अच्छा है, उनका मैथ अच्छा है, तो एक्चुरियल साइंस करके वो एक्चुरी बन सकते हैं। इवन देयर इज अ फेलो इन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, एसोसिएट, लाइसेंसिएट और फेलोशिप। तो इसको भी इंश्योरेंस कंपनीज में बड़ा माना जाता है कि हाँ, अगर ये चीज किसी ने पढ़ा है, तो चाहे अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट हो या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हो, तो इनको हायर करती है। 2 इंस्टीट्यूट का नाम सजेस्ट मैं करना चाहूंगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसमें बहुत सारे कोर्स करवाते हैं ये लोग, और नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी पुणे। तो ये सारे लोग जो हैं ये इंश्योरेंस रिलेटेड कोर्सेज करवाते हैं, जो कि अगर आप करते हैं तो इन फ्यूचर आपको इंश्योरेंस कंपनी में डेवलप करने में और उसको एज ए करियर आपको प्लान करने में आपको हेल्प करेगा। So this is all about from my side. So I am done. Sabyasachi, now I am open for any question answer. अगर कोई पूछना चाहता है तो we have got 8 minutes. So I am on time. Yes, sir, you are definitely on time. Sir, Pawan was having one question, as earlier you have showed that is in the chart. Yeah, just that I'm read out the question. He has written, sir, health insurance is also come under general insurance. Okay, very good question. इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, पवन जी, हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो पॉलिसी बेचती हैं, या डेडिकेटेड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो पॉलिसीज बेचती हैं, वो बेसिकली मेडिक्लेम पॉलिसीज होती है। मेडिक्लेम पॉलिसी का मतलब होता है इसमें इंडेमिनिटी का प्रिंसिपल फॉलो होता है। दैट मीन्स जितना आपका खर्च हुआ है उतना आपका पैसा दिया जाएगा, और ये पैसा एक्चुअली हॉस्पिटल को जाता है। आइदर इट में बी कैशलेस फैसिलिटी और रिएम्बर्समेंट। और जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी बेचती है उसको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बोला जाता है। दैट बेसिकली वो क्रिटिकल इलनेस डिजीज को कवर हम करते हैं। इसमें अगर किसी को वो डिजीज डिटेक्ट होता है तो हम डायरेक्टली इंश्योर्ड को पैसा देते हैं, हम हॉस्पिटल को पैसा नहीं देते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। और इवन जो डेडिकेटेड हेल्थ, जैसे अपोलो म्यूनिक हो गए, अभी तो वो एचडीएफसी में मर्ज कर गया, स्टार हेल्थ हो गया, सिग्ना टीटीके हो गया, तो ये सारी जो कंपनी है ये केवल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देती है। इवन यस, आपके क्वेश्चन का आंसर यस है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी मेडिक्लेम पॉलिसी देती है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देती है, एंड लाइफ इंश्योरेंस भी क्रिटिकल इलनेस कवर देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित अग्रवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड लाइफ इंश्योरेंस? ओके मोहित, जस्ट मैं जल्दी से मैं बता दूं कि जैसे मैंने 2 तरह का रिस्क बोला था, एक डाइंग टू अर्ली एंड लिविंग टू लॉन्ग। टर्म लाइफ का मतलब होता है इसमें हम जो 3 कंपोनेंट, अगर आप याद कर रहे होंगे, मैं आपको स्क्रीन में वो पेज ले आता हूं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ एक्सपेंस और मोर्टेलिटी ली जाती है, इंटरेस्ट अर्निंग नहीं रहता। दैट मीन्स अगर टर्म लाइफ में अगर मैं 10 साल का टर्म लेता हूं, 10 साल के टर्म में अगर डेथ होती है तो डेथ कवर मिलेगा नॉमिनी को। अगर डेथ नहीं हुआ तो वहां पर पैसा रिटर्न नहीं होता। जैसे जनरल इंश्योरेंस में,
जनरल इंश्योरेंस इज प्योर टर्म इंश्योरेंस, बिकॉज अगर मैं कार लेता हूं और कार का इंश्योरेंस कराता हूं, एक्सीडेंट हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा, नहीं हुआ अच्छी बात है, नेक्स्ट ईयर हम फिर से उसको रिन्यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, सर कैन वी हैव मल्टीपल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, कैन वी गेट मल्टीपल? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमिनिटी वर्ड काम नहीं होता। आप गूगल करके देखिएगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी इन लाइफ इंश्योरेंस, बिकॉज अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको आपको ये करूं, या अगर आप मेरे से पर्सनली डिस्कस अभी कभी कभी फ्यूचर में करना चाहो तो सब्यसाची से आप मेरा नंबर ले सकते हो। आई एम ओपन टू डिस्कस विथ यू रिगार्डिंग दिस इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन। बट आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि मेरा एचएलवी अगर लाख, सपोज मान लीजिए मेरा एचएलवी 1 करोड़ का है एज पर माई अर्निंग, तो मैं टोटल इंश्योरेंस एक पॉलिसी पे भी 1 करोड़ का सम एश्योर्ड ले सकता हूं, या मल्टीपल पॉलिसी से भी 1 करोड़ का सम एश्योर्ड ले सकता हूं। नाउ जो मल्टीपल पॉलिसी की हेल्थ इंश्योरेंस की आप बात कर रहे हैं, आप एक कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए या 10 कंपनी से, पर्टिकुलरली मेडिक्लेम, अगर मेरा 10 पॉलिसी का कवर 10 लाख रुपया है और मेरा खर्चा सिर्फ 2 लाख रुपया है, तो आपको 10 लाख नहीं मिल रहा, वो 2 लाख ही कंपनी पे करेगी, इंडेमिनिफाई करेगी, करेक्ट। बट अगर लाइफ इंश्योरेंस में आपके पास 4 हेल्थ इंश्योरेंस है, क्रिटिकल इलनेस कवर एक्चुअली, और चारों अगर कंपनी ने दिया है तो चारों का पैसा मिलेगा। इसीलिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर जब हम प्रपोजल फॉर्म भरवाते हैं तो सारा इंफॉर्मेशन हम उनसे पूछते हैं कि आपके पास प्रीवियस कोई कंपनी का पॉलिसी है क्या, और अगर कोई डिक्लेयर करता है हाँ मेरे पास है, उसके बाद भी अगर कोई कंपनी अगर इश्यू करती है पॉलिसी, तो सारे पॉलिसीज का पैसा उसको दिया जाएगा। पर्टिकुलरली इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आप मल्टीपल पॉलिसी ले सकते हो। ओके, अतुल अग्रवाल, मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस का डिफरेंस अतुल जी ये है कि लाइफ इंश्योरेंस इज बेसिकली इट कवर्स द डेथ, इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी में हम कवर करते हैं, और मेडिक्लेम जो है वो डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन कवर और पर्टिकुलरली क्रिटिकल इलनेस डिजीज अगर होता है तो ही कवर होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस मेडिक्लेम। पवन जी का एक और सवाल है, सर वेयर कंपनी इन्वेस्ट द प्रीमियम अमाउंट विच दे कलेक्ट? ओके, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे पास 2 तरह का पॉलिसीज होता है, एक ट्रेडिशनल प्लान और दूसरा यूलिप प्लान होता है। नाउ ट्रेडिशनल प्लान में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो टोटल गवर्नमेंट के पास होता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में हम करते हैं। एंड यूलिप प्लान में IRDA का हमारे पास परमिशन है और इवन गाइडलाइंस है कि हम मनी मार्केट में भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास भी कर सकते हैं, एंड इक्विटी मार्केट में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का बहुत ही हार्ड रूल्स होता है कि हम एक सेक्टर में 5% से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और उस सेक्टर में हम एक कंपनी में 5% से पैसा ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो वी हैव टू डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट। अगर हम इक्विटी में कर रहे हैं तो 25 डिफरेंट सेक्टर्स, एंड इवन जैसे बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस अपनी सिस्टर कंसर्न कंपनी में 5% से ज्यादा पैसा नहीं लगा सकती। होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कंपेयर द प्राइवेट लाइफ विथ LIC। ये तो मैं 20 साल से कंपैरिजन कर रहा हूं। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सी देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। देखिए LIC और जो बाकी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, LIC 1956 में बना था, उससे पहले भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही थी। डिफरेंस खाली इतना है कि LIC को इनिशियली बनाने में गवर्नमेंट ने 5% का फंडिंग किया था। दैट इज द ओनली डिफरेंस, अगर हम मेजर डिफरेंस हम बोल सकते हैं, है ना। एंड LIC आप कंपनी वाइज किसी को नहीं ये कर सकते हो, बिकॉज बाकी जैसे बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस, बजाज आपको पता है बजाज क्या है इंडियन मार्केट में, एंड अलियांज जर्मन में सबसे बड़ी कंपनी है, इट्स अ जर्मन कंपनी, है ना। टाटा AIG, टाटा ग्रुप को आपको मालूम है, AIG अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप, इवन ICICI प्रूडेंशियल, ICICI बैंक विद प्रूडेंशियल। सो कंपनी वाइज बहुत सारी कंपनियां बड़ी हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर इन टर्म्स ऑफ लोगों के माइंडसेट ये है कि LIC गवर्नमेंट की कंपनी है, बाकी प्राइवेट कंपनी है, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आज के डेट में, आज का रिसेंट अगर आप न्यूज पढ़ें तो बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक, कुछ नेशनलाइज बैंक को गवर्नमेंट प्रोवाइडाइज कर रही है।
तो प्राइवेटाइज करने के बाद इवन रेलवे प्राइवेटाइज हो रही है। तो आज के डेट में गवर्नमेंट और प्राइवेट मैंने प्राइवेट में आई डोंट थिंक मच डिफरेंस। आज के डेट में कंपनी का स्ट्रेंथ और सर्विस देख के लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। और सिमिलरली आप भी अपना करियर आज के डेट में अगर देखें तो कंपनी मैंने देखकर आप नो डाउट कंपनी को देखिए, बट अगर आपका क्वेश्चन जो है देयर इज अ डिफरेंस बट नॉट मच डिफरेंस बिटवीन ओनली थिंग 1956 से काम कर रहा है। तो आज के डेट में एलआईसी के पास मार्केट शेयर ज्यादा है बट धीरे धीरे ये कम हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एलआईसी बी ए बोन और डिजास्टर? नो प्राइवेटाइजेशन। देखिए आज के डेट में एलआईसी को प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता है, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन जब नेशनलाइज हुआ था तब एलआईसी बना था। तो एलआईसी को अगर बिकॉज एलआईसी आज के डेट में अपने आप में बहुत बड़ी संस्था बन चुकी है। इवन एलआईसी का हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, वो एनबीएफसी में भी घुस चुका है। तो ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से गलत होगा कि एलआईसी प्राइवेटाइज नहीं हो सकता है, बिकॉज प्राइवेट कंपनी जो कंपनियां काम इंश्योरेंस कंपनियां वो आ रही है और इंडिया में जो रूल है कि प्राइवेट कंपनी जो बाहर से आएंगी वो इंडियन कंपनी के साथ टाइप करेंगे। तो अभी नियर फ्यूचर में तो ये होना बड़ा मुश्किल है। एलआईसी प्राइवेटाइजेशन एलआईसी का अभी नियर फ्यूचर में नहीं होगा, बिकॉज एलआईसी इज हैविंग अ वेरी ह्यूज कॉर्पस, वेरी ह्यूज मार्केट शेयर। So it's 12:31. I have Yes, sir. minutes. So, No, Sabyasachi, sir. It was a wonderful Yes. session, and the students, the answers to the questions was very clear. And hopefully, this sessions after a long time in the insurance industry, where the students came to know about the actual reality, what is happening, and what all verticals we are working with. Because earlier there was a perception of the students like they have to only sell, but today we have got around 20 to 21 verticals we can see, which can be found out in this industry. So I hope like students have enjoyed a lot these sessions, and it was very clear about the thought about the objective and the prospect, and very helpful to them to understand, because post COVID-19 this is an industry which is having a gain of around 12% as per the earlier quarter which you have mentioned in the PPT, sir. So it was a wonderful session, and hope we would like to invite you for a session to our campus once this lockdown is over. I will definitely talk to our director, sir, regarding this, so that we can have a session for other students as well, those who are not present today. So thank you so much